Good afternoon to everyone. So, can I know the person who has entered with Surya Chadda? Yes, Sheetal, are you able to listen properly? Okay. Yes, but everyone is requested to basically unmute your video. Clear? So keep your cameras on. So time is almost there. We'll just wait for a couple of minutes. So there is a request from my side. Please basically on your cameras. So this is the today's topic, that is exporting data frames data as a table in MySQL database. So before I start my class, no, this is a request to everyone. Please basically keep your camera in the working mode.
Amleek, Sheetal, Jasmine, and who is this Redmi 6 Pro? Already we have finished 5 minutes of the regular class. So this is the basically the basics before we can start the class. Everyone is able to listen me properly and able to see the screen properly. Please give me your response. Only Sheetal is saying yes, sir. No. Continue, please. So now I am going to share my screen. So everyone is able to see the screen, this screen. So still few people are joining in. So Sujeevan has switched on his camera. Now, please, this is my request to everyone. Amleek and now उसने भी switch off कर लिया camera. Looking at the others, Anchal, Redmi 6 Pro, Jasmine, Sheetal Vaid, please switch on your camera. I am just. We have to start with the class with the procedure that whatever the procedure we have set down. Clear? Why you want to keep this camera off? Yes, Sukhjeevan, well done. So Sukhjeevan is basically swift to basically make the appropriate changes. Jasmine, thank you, Jasmine. Sheetal Vaid, Amleek, Anchal, and Redmi 6 Pro. Arya, we don't have too much time to basically keep on saying the one announcement again and again. Yes, आप unmute कर सकते हो? सुखजीवन is able to unmute. सुखजीवन कैसा हुआ एग्जाम आपका? गुड आफ्टरनून सर. हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून सर. अच्छा हुआ था. हाफ ईयर एग्जाम अच्छा हुआ था. ठीक है. जस्मीन, Jasmine, your response on the half yearly exam? Yes, hurry up. Amleek, Sheetal Vaid, Anchal, please switch on your camera so that we are able to start the class as soon as possible. Oh, this is mandatory part of the process. Clear? Sheetal has switched on. Yes, Amleek and Anchal. Yes, thanks. And Anchal has already done. And there is Redmi 6 Pro. Who is this Redmi 6 Pro? So I will not wait this last person to keep his camera on. Clear? So I am just going to start the today's process. ठीक है. दो प्रोसेस हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, टफ है एज कंपेयर टू दी ऑल दी अदर टॉपिक्स. पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज हाउ टू
इंपोर्ट द डाटा, जैसे हमने MySQL में एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को कैसे फेच करना है इनटू अवर डाटा फ्रेम। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज द एक्सपोर्ट प्रोसेस। एक्सपोर्ट प्रोसेस के अंदर क्या है बेसिकली कि जो हमारा डाटा फ्रेम है उसको हम एक्सपोर्ट करके अपने डाटाबेस के टेबल में लेके जाना चाहते हैं। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Say something yes or no. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, yes. So I am ready with this code. So I am going to share the screen. So if you are able to view this screen, yes. Yes. So now Sukhjeevan has given the thumbs up that they are able to view this screen properly. तो देखो बेटा इसके अंदर क्या है, you can read the title very clearly, exporting a data frames data as a table in MySQL database. तो हमारे प्रोग्राम का पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक अपॉन द पर्पस कि पाइथन के अंदर हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, उस डाटा फ्रेम को हमने एज ए टेबल हम स्टोर करना चाहते हैं इन अवर MySQL database. क्लियर? तो यू कैन सी ये जो लिखा हुआ है क्रिएटिंग कनेक्शन टू द डाटाबेस, इससे जो पहले वाला प्रोग्राम है ये सारा ओल्ड प्रोग्राम है। इस ओल्ड प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, जस्ट एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है और उस डाटा फ्रेम को क्या किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। सो वेरी फर्स्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस लाइन। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द कोड, इंपोर्ट pandas as pd। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, pandas पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस लाइन। Go to this code number, line number 2. This is new to everyone. कोई भी familiar नहीं है इस कोड के साथ। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक पैकेज है, that is the name of the package is SQLAL Chemi। तो इस पैकेज के अंदर हमने इस पैकेज को स्टडी नहीं करना, that is not in our syllabus basically, बट इसके अंदर एक ये है, इसके अंदर एक इसके अंदर ये जो पार्ट है क्रिएट इंजन, तो इसमें हमारे पास एक मेथड है जो हम मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। यू सी इन द बॉटम पार्ट ये क्रिएट इंजन मेथड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस पैकेज में से हमने सिर्फ ये एक मेथड उठाया है, एक मेथड इंपोर्ट किया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारे पास पैकेज है, द नेम ऑफ द पैकेज इज फ्रॉम SQL Chemi, और उसमें से एक हमने मेथड को इंपोर्ट किया है क्रिएट इंजन। इस मेथड के बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस मेथड नाउ। इसके 3-4 पैरामीटर हैं, बट ये हमें क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमें क्रिएट इंजन मेथड चाहिए। क्लियर? और एक जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंपोर्ट PyMySQL, ये एक पैकेज है जो मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने इस कोड को रन करके देखा आज सुबह, तो ये वाला पैकेज जो था दैट वाज नॉट इन माय सिस्टम। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसको इंपोर्ट कैसे करना है। दिस इज दी अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू इंपोर्ट दिस पैकेज। तो आप लोग कॉपी पेन, जैसे सुखजीवन, आई कैन व्यू ओनली सुखजीवन फ्रॉम हेयर, बाकी मेरे को बच्चे अभी नहीं दिखाई दे रहे। तो सुखजीवन इज नोटिंग डाउन दी पॉइंट्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इसके जो मेन पॉइंट्स आप साथ साथ में नोट करते जाओ। तो मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है जी, दिस इज द स्क्रीन। ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? सो इस स्क्रीन के अंदर बेटा ये देखो, इसके अंदर ये पैकेज है PyMySQL पैकेज। इसकी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है, और एक और स्क्रीन है मेरे पास। उस स्क्रीन में है, आई विल शेयर यू दी अनदर स्क्रीन, दिस वन। ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? इस स्क्रीन में देखो ये नीचे लिखा हुआ है कोंडा इंस्टॉल -c कोंडा अनाकोंडा PyMySQL। तो एज इट इज ही आप लोगों ने ये कमांड टाइप करनी है, कुछ नहीं करना। और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके
इस कमांड को टाइप करना है, ये नोट कर लो आप लोग सारे कमांड, टू इंस्टॉल दिस पैकेज विद कोंडा रन। ये कोंडा रन क्या होता है बेसिकली कि जहां पे हमारा अन्नाकोंडा स्टोर्ड है वहां पे जाके हमने इस कमांड को टाइप करना है। इसका क्या है, कोंडा इंस्टॉल -c अन्नाकोंडा पाई MySQL, एज इट इज इस कमांड को टाइप करना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसको टाइप कहां पे जाके करना है। इसको हमने ये यहाँ पे जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके CMD टाइप करना है, और जो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा वहां पे जाके इस कमांड को टाइप करना है आप लोगों को। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी हो गया कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये पाई MySQL पैकेज जो है ये आप लोगों की अन्नाकोंडा में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरे सिस्टम पे नहीं है तो मेरे को लगता है आप लोगों के सिस्टम पे भी ये वाला पैकेज नहीं होगा। तो एक तो होमवर्क आप लोगों के लिए ये मिल गया आज, दैट यू हैव टू इंस्टॉल दिस पैकेज टुडे। इसमें आप लोगों को जो जो डिफिकल्टी आएगी यू कैन कम बैक टू मी। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और वहां पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलते हैं, ये रन में जाके वहां पे जाके क्या टाइप करना है, CMD टाइप करना होता है यहाँ पे हम एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे मैं यहाँ पे CMD टाइप करता हूं, तो अभी तो आप लोगों को मेरे को लगता है ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी। I will share the screen now. ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को। एक इस तरह की एक और स्क्रीन खुली होगी यहाँ पे, शेयर स्क्रीन, ये विंडो है। इस विंडो पे जाके जो वो कमांड थी कोंडा, एग्जैक्टली अब मेरे को याद नहीं है उस कमांड का नाम क्या था, कोंडा, वहां से कॉपी कर लेना आप कोंडा, और जो भी वो सिंटेक्स था, इसको यहां से मैं देख ही लेता हूं एक बार। कोंडा इंस्टॉल -c, उसके बाद था अन्नाकोंडा पाई MySQL। इस कमांड को टाइप करके आप लोग पाई, ये MySQL नहीं है, पाई MySQL है, पाई MySQL। तो इस कमांड को आप लोग यहाँ पे टाइप करके यू कैन, आप लोग उस पैकेज को पाई MySQL पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम। तो ये तो है कि सबसे पहले पहली 3 लाइंस का मीनिंग ये है कि हमें कौन कौन सा पैकेज चाहिए। नाउ वी आर डन विद कि हमें पैकेज कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। लाइन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कार नाम से एक डाटा फ्रेम बना हुआ है। तो डाटा फ्रेम में बेसिकली पहला तो पैरामीटर है ब्रांड, फिर ये 4-5 ब्रांड मेंशन की हुई हैं, होंडा सिविक, टोयोटा, फोर्ड, साथ साथ में ब्रांड है, साथ में उसका मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है। एक आज मैंने ये इसके अंदर ऐड किया था हुंडई i10। और सेकंड पैरामीटर है प्राइस। तो जितने हमारे पास ब्रांड हैं, 5 ब्रांड है, तो 5 ब्रांड के मैंने क्या कर दिया, उसके प्राइसेस डाल दिए मैंने। तो ये आप लोगों को प्राइस कम लग रहे होंगे, ये 22,000 25,000। तो ये जो प्राइसेस है दिस इज इन डॉलर्स। सो डोंट टेक कि इंडिया में कार्स बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, ये अभी महंगी हैं। सो दिस इज इन डॉलर्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7। ये वाले स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे जो कार नाम से डिक्शनरी बनाई है, उस डिक्शनरी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट। ऑलरेडी हमने 20 बार इसको करके देख लिया हुआ है, बट कुछ एक स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगेगा, दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस प्रोसेस। तो ये स्टेप है कि ये जो कार नाम की डिक्शनरी है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और उस डाटा फ्रेम का मैंने नाम रख दिया DF1। तो DF1 नाम का मेरे पास डाटा फ्रेम है, और इस स्टेप में मैंने डाटा फ्रेम को क्या किया, मैंने उसको प्रिंट कर लिया। तो आप लोग ये नीचे वाले पार्ट में देख सकते हो, ये ब्रांड्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्राइसेस हैं, ठीक है। सो यू कैन सी, जैसे ये होंडा सिविक है, तो मैं होंडा सिविक की जगह मैं होंडा सिटी कर देता हूँ, होंडा सिटी, और इसका प्राइस लेट से मैं इसका प्राइस चेंज करके 21,000 कर देता हूँ, $21,000। और जब मैं इसको रन करता हूँ, यू सी दी, अब होंडा सिविक से इसका नाम क्या होगा, होंडा सिटी हो गया इसका नाम, और इसका प्राइस भी चेंज हो गया।
तो दिस इज द वे दैट हाउ वी आर डीलिंग विद द डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में बेटा कुछ भी नया नहीं है, ये तो सारा पुराना ही है। डाटा फ्रेम कैसे काम करता है, यू सी, ये जो मैंने कमेंट डाला हुआ है, क्रिएटिंग द कनेक्शन टू डाटाबेस, ये सिर्फ 3 लाइनें नहीं है। क्लियर, 3 लाइन का कोड है इसमें, लाइन नंबर 10, 11 एंड 12, यही आज का कोड है जो नया कोड है, बाकी सारा कोड पुराना है। तो सबसे पहले हमने ये इंजन नाम का एक क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंजन नाम का। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, वी विल चेंज इट्स नेम। ये नहीं है कि मैंने इंजन नाम रखा है तो सर ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम रखा था वही रखना है। सो यू नीड नॉट टू बेसिकली वरी फॉर दिस वन। ये जो क्रिएट इंजन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको एज इट इज लिखना है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये क्रिएट इंजन, ये कहां से आया क्रिएट इंजन, जो मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया था, SQL Alchemy ये पैकेज है जिसमें मैंने ये क्रिएट इंजन पैकेज इंपोर्ट किया था। अब इस क्रिएट इंजन पैकेज के अंदर ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, जो भी डबल कोट्स में लिखा होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस स्ट्रिंग में जो ये वाला हिस्सा, सबसे पहले वाला हिस्सा है, इसमें हमने क्या लिखना है, MySQL प्लस PyMySQL। MySQL तो हमारे पास वो डाटाबेस है जिसके साथ हमने कनेक्टिविटी करनी है, और जिस पैकेज के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है उसका नाम है PyMySQL। तो ये आप लोग जैसे ऊपर देख रहे हो, जैसे जो मैं HTTP ये जो लिखता हूं तो वैसा ही है ये सारा। फिर इसके बाद क्या है, कॉलन, कॉलन के बाद क्या है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये तो एज इट इज ही लिखना है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये रूट का क्या मतलब है। रूट होता है बेटा, रूट इज बेसिकली ये यूजर नेम, ठीक है। तो रूट के सामने आप लोग लिख सकते हो व्हाट इज दिस रूट इज। आप नेक्स्ट लाइन में कमेंट डालो थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प के लिए। रूट क्या चीज है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, रूट इज द यूजर नेम। तो यूजर नेम कौन सा है, ये यूजर नेम है, यूजर नेम ऑफ MySQL लॉगिन। 95% बच्चों ने यही रखा होगा यूजर नेम रूट, तो आप लोगों ने भी रूट ही रखना है। ये कौन सा रूट है, जो हम MySQL के लॉगिन के टाइम पे करते हैं, ठीक है। MySQL में लॉगिन किया होगा आप लोगों ने जैम से, वही वाला रूट है। फिर इस रूट के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये कॉलन के बाद होता है, यहाँ पे हमने डालना होता है पासवर्ड, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने MySQL के लॉगिन में पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, ब्लैंक रखा हुआ है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। अदरवाइज यहाँ पे डबल कोट्स नहीं आना, सिर्फ पासवर्ड का नाम आना है कॉलन के बाद। तो कॉलन के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने पासवर्ड कोई सेट ही नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद लिखना है @localhost, ठीक है, लोकल होस्ट, क्योंकि ये देखो हम लोग लोकल होस्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं पाइथन में भी। क्लियर, सो ये हमारा लोकल होस्ट ही है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट पे है हमारे, मैंने ये लिखा हुआ CIS दसुआ। ये CIS दसुआ ये क्या चीज है, CIS ये मेरे, दिस इज द नेम ऑफ द डाटाबेस है जिसके अंदर मेरा टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हमने पहले भी की थी, बट हमारा सिंटेक्स लिखने का मेथड थोड़ा डिफरेंट था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये माइकॉन नाम से मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया, माइकॉन। और ये कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये जो इंजन वेरिएबल है इसको यूज करके डॉट कनेक्ट मेथड से ये माई कनेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये माई कनेक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं। बिकॉज जब पाइथन और MySQL में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखो कि जो पाइथन है वो अनाकोंडा में और जुपिटर में काम करती है, डाटाबेस मेरा MySQL में पड़ा हुआ है। तो दोनों में हमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देन वी कैन ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम पाइथन टू MySQL। और लास्ट पे है मेरा जो मेरा
कोड है दैट इज df1। अब ये df1 क्या है, जो मैंने यहाँ पे डाटा फ्रेम क्रिएट किया, उसके साथ मेथड यूज करना है toSQL। ये toSQL मेथड क्या करता है, डाटा फ्रेम को टेबल में लेके जाता है। toSQL का मीनिंग है कि यहां से डाटा को लेके जाना है SQL के अंदर। तो ये जो पहले वाला एट्रीब्यूट है माई न्यू कार, ये क्या चीज है, मैं फिर से यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूं। ये जो न्यू कार है, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल जिसके अंदर मैं अपने डाटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये न्यू कार क्या है, न्यू कार मैंने टेबल का नाम रख दिया है। मैं लेट से अब इसका नाम ही चेंज कर देता हूं बिकॉज वी आर डूइंग हियर इन द क्लास, तो इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूं, लेट से लेटेस्ट कर देता हूं, लेटेस्ट अंडरस्कोर कार, कुछ भी रख दो। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। सेकंड पैरामीटर है मेरा माइकॉन। माइकॉन मैंने आपको बता दिया, माइकॉन क्या है, माइकॉन इज द कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन दी पाइथन एंड दी MySQL। तीसरा मेरा पैरामीटर है इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि मैं इंडेक्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोगों को पता है, ये देखो ये नीचे जो डाटा फ्रेम पड़ा हुआ है, ये जो 0 1 2 3 4 है, ये 0 1 2 3 4 क्या है, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स मींस दैट आई एम नॉट एक्सपोर्टिंग द इंडेक्स। लास्ट एक पैरामीटर है इफ एग्जिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इफ एग्जिस्ट इक्वल टू रिप्लेस लिखा हुआ है। इक्वल टू रिप्लेस लिखने का ये मतलब है कि अगर लेटेस्ट कार नाम से टेबल बना हुआ है तो उस टेबल को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मींस द कंटेंट्स ऑफ दिस डाटा फ्रेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द ओल्डर कंटेंट्स। आप इसको अपेंड भी कर सकते हो यहां पे, क्लियर। एक रिप्लेस ऑप्शन है, एक अपेंड ऑप्शन है। अपेंड ऑप्शन आपको पता है वो ऐड करता है, वो ओवरराइट नहीं करता। यस यस, दैट एड्स एट द एंड। तो सबसे पहले इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। सो यू सी हियर, आई एम रनिंग दिस कोड। तो यहाँ पे पाइथन में सिर्फ मेरा डाटा फ्रेम ही डिस्प्ले होगा, टेबल मेरा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि टेबल कहाँ पे पड़ा हुआ है, टेबल तो MySQL में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने ऑलरेडी, आई विल शेयर दी अनदर स्क्रीन। तो यहाँ पे दूसरी स्क्रीन के अंदर, दिस इज द स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी यू कैन सी शो टेबल्स। मैं स्टेटमेंट रन करता हूँ शो टेबल्स। ये शो टेबल स्टेटमेंट क्या करती है कि ये देखो CIS दसुआ, ये मेरा है, दिस इज दी माई डाटाबेस नेम CIS दसुआ। ठीक है, CIS दसुआ में मेरे पास ये सारे टेबल्स हैं। और ये देखो, ये लेटेस्ट कार नाम से ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। मैंने नहीं कोई टेबल क्रिएट किया, अभी मैंने आप लोगों के सामने वो टेबल चेंज किया था और मैंने उसका नाम क्या रख दिया था, लेटेस्ट अंडरस्कोर कार रख दिया था उसका नाम। तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली CIS दसुआ डाटाबेस के अंदर ये टेबल ऑटोमेटिकली बन गया है। और यहां पे क्या करना है, ये जस्ट सिंपल स्टेटमेंट रन करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेटेस्ट अंडरस्कोर कार सेमीकोलन। और यहां पे क्या गया, यू हैव एन एरर SQL प्लीज चेक द मैनुअल दैट। ठीक है, एक बार इसमें से एक एग्जिट कर लेते हैं एक बार, मेरे को लगता है फिर से लॉगिन कर लेते हैं इसमें। CD ये मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ बिकॉज अब आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा उधर। शेयर स्क्रीन एंड ये है कमांड। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे XAMPP को खोल रहा हूँ, CD XAMPP CD, ये तो आप लोगों को पता ही होगी स्टेटमेंट्स।
cd bin, ये मैं अब लॉगिन कर रहा हूं MySQL के अंदर, MySQL -u रूट क्या है, रूट इज द नेम ऑफ माय यूजर नेम। तो ये कनेक्टिविटी हो गई है। यहाँ पे टाइप करो शो डाटाबेसेस, तो जितने डाटाबेस हैं MySQL में सारे डाटाबेस आ जाएंगे यहाँ पे। ये मेरे डाटाबेस का नाम है CIS दसूहा। तो इसके लिए क्या टाइप करना पड़ेगा, यूज CIS दसूहा। अब इसमें मैं बोलूंगा शो टेबल्स, तो शो टेबल्स में आ गया मेरे पास लेटेस्ट कार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज लेटेस्ट अंडरस्कोर कार। तो ये देखो, ये होंडा सिटी आ गई है, होंडा सिटी का प्राइस आ गया है, टोयोटा कोरोला ये उसका प्राइस है। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी, नाउ वी विल चेंज, हम उस इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं वहां से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, उस अपने टेबल में से ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें से मैं होंडा सिटी को बाहर निकाल देता हूं और यहाँ पे कोई नई कार जैसे महिंद्रा को एंटर करवा लेते हैं, महिंद्रा, और उसकी थार कार को एंटर करवा लेते हैं, थार कार, और उसका प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं 19,000 तक, ठीक है जी। तो एक आदि हम उड़ा यहाँ से Audi 4 को डिलीट ही कर देते हैं, Audi 4 लेट्स से वी डोंट वांट दिस Audi 4, और उसका कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से प्राइस भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास 4 ब्रांड हो गई हैं और 4 ही प्राइसेस हैं यहाँ। सो नाउ आई विल रन दिस कोड। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा डाटा फ्रेम व्यू हो रहा है, ठीक है। पहली महिंद्रा कार है, दूसरी टोयोटा है, टोयोटा कोरोला, फोर्ड फोकस और हुंडई i10। नाउ आई विल चेक माय टेबल। तो उसके लिए जो मेरी स्क्रीन है, दैट इज आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है जी। तो अब फिर से वो स्टेटमेंट को रन करते हैं, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेटेस्ट कार। तो ये देखो अब वहां पे कौन सी कार आ गई है, महिंद्रा थार, टोयोटा कोरोला, फोर्ड फोकस एंड हुंडई आई। तो ये कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, वी हैव जस्ट एडिड 3 लाइंस ऑफ कोड। अगर आप थोड़ा इसको समझ के कर रहे हो तो बड़ा इजी है, अगर आप इसको क्रैम करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो आई एम अगेन शेयरिंग द कोड। ये है हमारे पास कनेक्टिविटी का कोड है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये 3 लाइन नहीं है। और ये जो पाई MySQL, ये एक नया पैकेज है जो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने कमांड आपके साथ शेयर की है, वो कमांड आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी। 5-10 मिनट लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो कमांड टाइप करनी है, वो खुद ही उसको सर्च करके अपडेट कर देगा आप लोगों के सिस्टम में, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 है इसके अंदर, सबसे पहले हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, उसको पॉपुलेट करना है, उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। और फिर अब इस डाटा फ्रेम को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं टू दी MySQL। उसमें सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेटर से मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर नाम चेंज करता हूं, मैंने इसका नाम ABC रख दिया, तो बस आप लोगों ने यहां पे भी उसका नाम ABC रख दो। बट ABC हम क्यों नहीं रखते, कि दिस डजंट लुक प्रोफेशनल। ABC क्या चीज है, तो इंजन से आप लोगों को पता चल रहा है कि हम क्रिएट इंजन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इसका बेनिफिट होता है। बाकी ठीक है, क्रिएट इंजन में ये जो पैरामीटर है, ये स्ट्रिंग पास करना होता है MySQL प्लस पाई MySQL मैंने आपको बता दिया, दिस इज द पैकेज। और ये हमारा क्या है, डाटाबेस है। फिर कॉलन // रूट इज द यूजर नेम, फिर पासवर्ड डालना है @localhost, फिर डाटाबेस का नाम बताना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, और फिर को करना है डाटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है टू SQL। उसके लिए हमें ये टू SQL मेथड रिक्वायर्ड है। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, पहला हमने टेबल नेम पास किया, फिर कनेक्शन का नाम पास किया, फिर इंडेक्स है, ठीक है जी। तो इंडेक्स को भी हम चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। क्लियर, मैंने भी इसको करके नहीं देखा ये ट्रू करने से क्या होता है इसका।
और इफ एग्जिस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। रन हो गया सक्सेसफुली। नाउ आई विल सी माय डेटाबेस। तो डेटाबेस ये दिखाई दे रही है स्क्रीन। तो ये देखो बेटा, अब मैंने इंडेक्स को ट्रू किया ना तो ये इंडेक्स भी आ गया। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी किया, ये मैंने सुबह भी नहीं करके देखा था। सो नाउ यू आर एबल टू सी इंडेक्स 0 1 2 3। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, चेयर आपने की है दिख नहीं रही। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो अब स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। तो ये देखो आप इस स्क्रीन के अंदर ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो ये इंडेक्स कैसे आया? दिस इंडेक्स पहले सिर्फ देखो पहली वाली कमांड में सिर्फ ये ब्रांड नेम और प्राइस ही था, अब इंडेक्स भी आ गया। ये इंडेक्स कैसे आ गया? ये मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज किया, प्रोग्राम के अंदर मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। दिखाई दे रहा है ये अब? यस सर। हाँ, और ये देखो मैंने ये इंजन का नाम भी चेंज करके एबीसी कर दिया हुआ है। तो कुछ भी रख दो उसका नाम, इसका मतलब है आप कुछ भी नाम रखोगे, माइकॉन का नाम आप कुछ भी रख दो, डीईएफ रख दो तो भी चलेगा ये। तो इंजन किस लिए है? इंजन इज जस्ट कि थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों की कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वन, आप लोगों का कोई भी इशू है कि हमें सर ये नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला, सो नाउ यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। यस, कोई क्वेश्चन है? शीतल, अमलीग, जसमीन, सुखजीवन, आंचल। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज ही आप लोगों का 30 मिनट्स कंज्यूम हो गए, इसको रन करके देखो, ठीक है? और ये देखो अगर आप प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाओ ना तो हमारे पास हार्डली 10-15 प्रोग्राम बनते हैं। तो अगर आप इन प्रोग्राम्स को आज से प्रैक्टिस शुरू करोगे और कब जाके हमारा एग्जाम है फरवरी में, आप लोग केमिस्ट्री के इतनी इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस याद कर लेते हो, कितना कुछ फिजिक्स का याद कर लेते हो, ठीक है, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का याद कर लेते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए। सिर्फ 2 ही मेजर क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ टू एक्सपोर्ट द डाटा, हाउ टू इंपोर्ट द डाटा। ऐसे मैं कल आप लोगों को इंपोर्ट वाला ऑपरेशन भी ये ऐसे जूम के ऊपर करके दिखा दूंगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर करने से और स्क्रीन के ऊपर करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्लैरिटी का जो इशू है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा, आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सर कैसे कर रहे हैं और हमने कैसे करना है। ठीक है, सो आई थिंक आफ्टर लंच वी हैव बहुत डिस्कशन कर लिया है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके पास नई बुक है, ये सारा कोड जो है ये 261 पेज के आसपास सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इसका है, वहां से कॉपी कर लो, या जो मैंने यहाँ पे लिखा है वहां से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, एंड ट्राई टू रन दिस कोड। ठीक है जी? क्वेश्चन मेरे को लगता है आपके पास कोई नहीं है, सो एवरीवन इज फिनिश्ड विद द क्वेश्चन। तो अभी आपका मेरे को लगता है थोड़ा चाय पीने का टाइम हो गया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। ठीक है, कोई डाउट होगी तो बेटा बता देना। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।